Okay, good afternoon to all of you. Okay, so what we have discussed in the last session, I think caching we have done, web caching. Good afternoon, Abhiraj. Okay, okay, web caching हो गया था. Share my screen. Okay, so as of now we have seen the web caching. So हमने देखा था कि web caching क्या है, how it works, how the requested can be transferred from one end to the another end. I think somebody has asked me for the question of the HTTP request message and the response message. I think यही क्लास में से किसी ने पूछा था ना. हमने जो मैसेज फॉर्मेट देखे थे, HTTP request message, HTTP response message. So in that we have discussed that which browser is used, whether the connection is persistent or non-persistent, which platform is used by the client. That questionnaires we have done, right, in the message only, in the HTTP request message and the HTTP response message. So let me just show you some paper in that. Okay, so you can see here ये GTU का समर 15 का पेपर है. तो ऐसे मैसेजेस हमने डिस्कस किए थे, राइट, रिक्वेस्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्स मैसेज. तो यू कैन सी हियर ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन अ जीटीयू एग्जाम, राइट. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए स्कोर करना बहुत ही इजी है क्योंकि 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वो भी इसी मैसेज में से ढूंढ के, राइट. सो इट इज वेरी इजी. तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका. सेकेंड, समर 16 का एक पेपर है, उसमें भी ये मैसेज जो है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इट्स ऑफ 7 मार्क्स. So you can see here the template is given like this and after that there are some questions based on the message. तो अभी तक के 2 पेपर्स में ये है. लेटेस्ट पेपर मैंने अभी डाउनलोड नहीं किए हैं 17, 18, 19 के, तो शायद उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें हो सकता है, राइट. So you must be clear with that concept. Okay. Now, after the web caching, there is one concept which is not in your syllabus,
बट यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। उसके लिए एक जो टॉपिक है आपके सिलेबस में तो नहीं है, मैंने देखा, इसलिए पीपीटी में भी नहीं है वो टॉपिक, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट यू राइट नाउ। ये मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बट इन जीटीयू सिलेबस दिस कंसेप्ट इज नॉट देयर। Sharing my screen. Okay, so the next topic is the conditional gate. Okay, so as of now we have seen कि भाई HTTP request message जिसमें कितनी lines होती है, request line, header line, blank line and entity body. In the response message the same is there, but instead of a request line the first line is the status line, header lines, blank lines and the entity bodies. After that we have seen these messages, right, that how what is the format of the HTTP request message and the response message, how it can be framed, what are the things that are there in the messages, right? Now, the advanced concept of this messages is the conditional gate statement, right? अब ये conditional gate statement है क्या? अभी as we all know कि भाई in the caching we have seen कि भाई उसका advantage क्या था कि भाई वो response time है उसे reduce करता है. It also reduces the traffic on the network. So ultimately it just reduces the overhead on the origin server. And due to the less overhead on the origin server, we don't need to frequently change the, we don't need to maintain the server, right? So ultimately the cost will be less, right? Now, what happens in case of a कंडीशनल गेट? यहाँ पे कंडीशनल गेट जो है उसका रोल क्या है, राइट? उसका वो करता क्या है? So first thing we can say कि भाई ये जो है वो गेट मेथड को यूज करता है, राइट? और दूसरा जो है, first thing we can say about the conditional gate, the request message uses the gate method, and the second thing we can say the request message include an if modified since, right? ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी है. अब ये दो चीजें मैसेज में कैसे इफेक्ट करती है? लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक मैसेज है which uses as it is ऑलरेडी सेड कि भाई यहाँ पे दो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट तो कि भाई ये गेट मेथड यूज करता है रिक्वेस्ट मैसेज में. दूसरा ये कि भाई ये इफ मॉडिफाइड सिंस हेडर फील्ड को यूज करता है, राइट? नाउ लेट्स से देयर इज वन मैसेज हियर, गेट fruit kiwi dot gif http 1.1, right? So as per the request message format, the request line contains the three fields. That is, first is the method, second is the URL, and the third is the version. If you just remember this, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट लाइन में तीन फील्ड्स होते हैं, method, URL, and version, right? So the three fields I mentioned in this message. After that, the host name is mentioned. So let's say the host name is www.somerestaurant.com, राइट? सो यहाँ पे मैंने दो चीजें रिक्वेस्ट मैसेज में बताई है कि भाई एक तो रिक्वेस्ट लाइन है जो ऑब्जेक्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो, along with the request method, and the second one that I have mentioned is the host name. Now here the web server sends a response with the requested object to the cache. अभी यहाँ पे जब ये cache request भेजता है to the origin server will send back the response, right? So at that time वहां पे response कैसा होगा? So response message कहाँ से start होता है? It starts with the status line which contains
the three fields which is mentioned over here, that is version, status code and the freeze, right? So अभी ये जो है that is a request message. अब यहाँ पे मैं जो frame कर रही हूँ that is a response message. So response message starts with the HTTP version. So it will be like HTTP/1.1 200 is the phrase and OK. After that, the response message जब create हुआ है उसका date and time. So let's say Saturday 7th July 2007. Let me just give the time. यहाँ पे मैंने time कुछ mention कर दिया, right? And the platform it uses to send the request, that is, let's say Apache. And the field that is used in the conditional, that is if modified since. But यहाँ पे हम लोग पहले modified date लिखेंगे, modified, that is Wednesday 4th July, और 4th में कुछ भी लिख सकते हैं, 4th July 2007, and the time is this. बाकी चीजें तो कॉमन ही रहेगी. और it's an image or GIF. So this is the response message that the origin server sends to the cache. अभी यहाँ पे response message में कौन कौन सी चीजें हैं? Response message है that definitely it will start with the status line. So status line में तीन fields है, that is version, status code and the phrase. So version क्या है? 1.1, status code 200 and the phase is okay. Date is, डेट यहाँ पे कौन सी होगी कि जब ये रिस्पॉन्स मैसेज क्रिएट किया गया होगा उस टाइम और डेट को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा इन द रिस्पॉन्स मैसेज. अपाचे से ये जो प्लेटफॉर्म है वहां से रिस्पॉन्स भेज रहा है. लास्ट मॉडिफाइड कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में मॉडिफाइड कब हुआ था, तो 4th जुलाई 2007 को ये लास्ट मॉडिफाइड हुआ था. और रिस्पॉन्स मैसेज कब बना? उसके 3 दिन बाद, दैट इज 7th जुलाई 2007, राइट? कंटेंट टाइप तो कभी GIF के लिए सर्च किया है, सो ऑब्वियसली इट कैन बी इमेज और GIF. नाउ यहाँ पे द कैश फॉरवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू द रिक्वेस्टिंग ब्राउजर बट आल्सो कैश द ऑब्जेक्ट लोकली, राइट? जब ओरिजिन सर्वर से, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि भाई जो ओरिजिन सर्वर से जो डेटा आएगा उसकी एक कॉपी जो होगी वो कैश में ऑलरेडी स्टोर कर दी जाएगी, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज यूज की जाएगी कि दैट इज द स्टेटमेंट इज इफ modified since, right? So if modified since क्या होगा? अभी क्या होगा कि भाई एक वीक के बाद लेट्स से कि भाई ये जो है वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है, दिस द क्लाइंट हैज सेंड दिस रिक्वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसका रिस्पॉन्स मिल गया. नाउ लेट्स से आफ्टर 1 वीक the client again request for the same object, right? अगर client जो है वो same object के लिए request करता है by using the request message, तो यहाँ पे क्या होगा? Let's say कि यहाँ पे मैसेज कुछ इस तरह से होगा, get, let me just copy from this, बट यहाँ पे एक और हेडर फील्ड ऐड किया जाएगा, दैट इज इफ मॉडिफाइड सिंस एंड द डेट विल बी Wednesday 4th July 2007 and the time will be the same, right? जो पहले होगा लास्ट मॉडिफाइड में वही टाइम रहेगा यहाँ पे 9:00:00. तो यहाँ पे if modified जो हेडर लाइन वी कैन से इट्स सेम टू दैट ऑफ द लास्ट मॉडिफाइड.
बट यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से दैट आई हैव विजिटेड द आईआईटी बॉम्बे वेबसाइट ऑन 7th जुलाई, राइट। मैंने 7th जुलाई को आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट देखी थी, तब उस टाइम पे मुझे करियर में वैकेंसी दिखा रहा था। नाउ लेट्स से कि मैंने एक वीक के बाद फिर से वही वेबसाइट को ओपन करके देखा, राइट। तो अभी भी मुझे वैकेंसी दिखा रहा है, बट एक्चुअली देयर इज नो वैकेंसी, राइट। तो एक्चुअल में होगा क्या कि भाई सर्वर में जो वेब कैश, जो कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर होगा, उसमें कंटेंट अपडेटेड नहीं हुआ होगा, राइट। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा है तो देयर में तो प्रॉब्लम होगा क्लाइंट को कि अगर उसको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो फॉर दैट द कंडीशनल गेट स्टेटमेंट इज यूज्ड। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो एट दैट टाइम द प्रॉक्सी सर्वर विल वेरीफाई कि भाई ये जो कंटेंट है मेरे पास, ये जो कॉपी पड़ी है मेरे डिस्क स्टोरेज में, वेदर इट इज अपडेटेड कॉपी और नॉट, राइट। अगर मेरे पास अपडेटेड कॉपी नहीं है, आई हैव टू अपडेट माई कॉपी। मुझे सर्वर के पास से ओरिजिन सर्वर के पास से डेटा लेना होगा और मुझे अपडेटेड कॉपी को स्टोर करना होगा। बट वो कैसे होगा? दैट इज बाय यूजिंग द स्टेटमेंट इफ मॉडिफाइड सिंस, राइट। यानी कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो वेरीफाई करेगा कि भाई जो ओरिजिन सर्वर ने ऑब्जेक्ट को लास्ट में अपडेट कब किया था, राइट। और वो कहां से मिलेगा? लास्ट मॉडिफाइड से। last modified date, and if modified date is the same, that means there is no update in the object, right? Object में अभी तक कोई भी update नहीं आया है, object is the same, so I can directly transmit that subject to the client, sorry, object to the client, राइट। अगर वो डेट सेम नहीं है, लेट्स से कि यहाँ पे 4th जुलाई को लास्ट मॉडिफाइड हुआ था और यहाँ पे इफ मॉडिफाइड सिंस डेट में 6th जुलाई है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट हैज बीन अपडेटेड आफ्टर 2 डेज, राइट। जब रिक्वेस्ट की थी उसके 2 दिन के बाद अपडेट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जब क्लाइंट जब वेबसाइट को विजिट करता है तब उसमें पुराना कंटेंट दिखाता है इफ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ कंडीशनल गेट। बट लेट्स से दैट इफ द हेडर लाइन इज यूज्ड इफ मॉडिफाइड सेंस, अगर प्रॉक्सी सर्वर ओरिजिन सर्वर के साथ ये हेडर लाइन को मैच कर लेता है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन अपडेटेड। उसके पास जो कॉपी पड़ी है वही ऑब्जेक्ट है और वही यूजर को ट्रांसमिट करना है। So it is very necessary to use the conditional gate statement, right, just to verify that whether the content in the proxy server is updated or not. So this is what the concept of the conditional gate. So is it clear to all of you? है बहुत ही छोटा कंसेप्ट, बट आपको ये समझना जरूरी है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज भी होगा सर्वर साइड से, तो द रिस्पॉन्स विल बी लाइक दिस ओनली, सिंपल रिस्पॉन्स starts with the version code 304 that is not modified. As I have said कि सारे जो स्टेटस कोड है उसके मीनिंग्स उसके फ्रेज में दिए जाते हैं, so that is the same only. Date Saturday, let's say 14th July 2007. So this is, we can say, the request message, and this is the response message. Now ज्यादातर आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि भाई ये जो क्वेश्चन होगा वो तो होगा ही, दैट इज द मैसेज। So if you want to take a photo of this, you can take. यहाँ पे क्या दिया गया है? From which browser
the URL is requested. So कोई बताएगा इसका आंसर? What is the answer of this? Yes, anyone? Chrome, right. यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज में दिया गया है. Then next question is, does browser request a non-persistent or a persistent connection? Obviously persistent connection. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? Which is the complete URL of the document requested by the user? अब ये बताओ. Complete URL. It's very simple. It's already given. www.gtu.ac.in, राइट. और उसके बाद URL के दो पार्ट्स होते हैं, दैट वी ऑल नो, होस्ट नेम एंड द ऑब्जेक्ट पार्ट. होस्ट नेम तो सबको पता चल गया, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया गया है, वो दोनों को मिला के पूरा URL बनेगा. क्लियरली मेंशन्ड कंप्लीट URL. देखो और एक बार. www.gtu.ac.in/home.asp या तो फिर index.html, जो भी दिया गया है वो होगा यहाँ पे, राइट. उसके बाद का क्वेश्चन है, which HTML method is used to retrieve the requested URL? What is the answer of that? Very simple. Get method is used, right? So this is all about this message. और एक मैसेज है, 7 मार्क्स में पूछा गया था. जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस, आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हो. Okay, now moving to the next point. Yes, there are two methods, add and post. These both are the methods that are used in the request message.
Okay, now the next concept is cookies. तो cookies क्या है? I think ये सबको पता होगा. What do you mean by cookies? खाने वाली नहीं, जो हम यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो यूज होता है वो वाली cookies. जिसको भूख लगी होगी उसको तो वही याद आएगा. Store some site data and use them. Okay, unwanted data, stored data, website app for cookies. Okay. Piece of data, website app for cookies. Okay. तो अगर कुकीज की बात करते हैं तो कुकीज क्या है? जो एक कुछ डेटा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो यूजर की होती है वो स्टोर करती है, राइट? नाउ लेट्स से कि भाई यहाँ पे कुकीज किसके लिए यूज किया जाता है. So first of all, we need to understand that cookies has mainly four components. Cookies के mainly four components होते हैं. It mainly consists of four components. First is we can say a cookie header line in the HTTP response message. Let me just type. Now, first of all, we can say that it mainly consists of four components. First is we can say कि भाई यहाँ पे जब कोई भी यूजर किसी वेबसाइट को विजिट करता है, it is the user identification number is generated, right? वो कब जनरेट होगा कि जब कोई यूजर किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है, when it reaches to the server host will generate an identification number of that specific host, right? So पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो हमेशा वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हमेशा हेडर लाइंस के साथ जुड़ा होगा, यानी कि जब जब क्लाइंट वो वेबसाइट को विजिट करेगा उस टाइम पे वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा वो कॉल होगा. So first thing we can say that it mainly consists of four components. First is the header line in the request message, in the response message, sorry. Second thing we can say header line in the HTTP request message. पहले response message में एक identification number आएगा, उसके बाद दूसरा होगा that is the request message. Client फिर से object के लिए request करेगा, so at that time also the header line will be there. So we can say a cookie in the request message. Second thing we can say कि जब client
रिक्वेस्ट करता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, एट दैट टाइम that user identification number which is generated by the server, that will be called again when the client is requesting for the object for the second time, right? तब उस टाइम पे जब रिक्वेस्ट मैसेज सेंड होगा, उस टाइम पे उसका यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर उस रिक्वेस्ट के साथ जुड़ा होगा, राइट? नाउ व्हाटएवर द एक्शंस दैट इज परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट, दैट विल बी रिकॉर्डेड एट द एंड एट द बैकएंड डेटाबेस, राइट? सो फॉर दैट वी कैन से कि भाई एक कुकी फाइल होगी जो बैकएंड में जो एंड सिस्टम है वो मैनेज करती है, राइट? सो दैट इज वी कैन से अ कुकी file kept on the user and system and managed by the browser. And the next thing is a backend database at the website. Now यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है? Let's just take one example so you will get a better clarity. यहाँ पे let's say कि भाई कोई एक क्लाइंट है, and the another one is the host. Let's say this is the client host and this is the server host. Client host, server host. Now let's say कि भाई यहाँ पे ये जो क्लाइंट है वो एक वेबसाइट को विजिट कर रहा है, लेट्स से कि Amazon को विजिट कर रहा है. So what the client will do? It will open the browser and just type www.amazon.com, right? वो टाइप करेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज होगा that will be from the client side, right? वो ऑलरेडी जो दूसरी साइट है, लेट्स से कि फ्लिपकार्ट को वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है, तो उसके पास ऑलरेडी उसका यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, राइट? यहाँ पे इस क्लाइंट ने फ्लिपकार्ट को ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे होगा लेट्स से 1 2 3 4, राइट? ये उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, राइट? लेट्स से कि अभी वो Amazon को विजिट कर रहा है, सो देयर विल बी अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर टू विजिट दिस स्पेसिफिक वेबसाइट. यहाँ पे जब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम द क्लाइंट, it will be a normal HTTP request, right? This will be the normal HTTP request. अब यहाँ पे सर्वर चेक करेगा कि भाई ये क्लाइंट है वो पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है, यानी कि उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो जनरेट करना होगा कि ताकि जब वो क्लाइंट है वो दूसरी बार जब विजिट करता है तब हमें पता चले कि भाई ये क्लाइंट है, उसने पहले कब विजिट किया था, कौन से पेजेस को विजिट किया था, कितनी बार कितने पेज में कितने टाइम तक रहा था, वो सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेता है, राइट? तो यहाँ पे सर्वर एक यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेगा फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट. So let's say server creates a user identification number, let's say 5678, राइट? यहाँ पे एक यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हुआ और सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स किया. एट दैट टाइम दिस कुकी हेडर लाइन विल बी एडेड. अभी यहाँ पे कुकी हेडर लाइन कैसे ऐड होगी? लेट्स से दिस इज द रिस्पॉन्स मैसेज, और यहाँ पे कुकी हेडर लाइन विल बी सेट एज सेट कुकी और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज 5678. और यहाँ पे जो होगा दैट इज द रिस्पॉन्स मैसेज, तो वो तो होगा ही HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, राइट? सो यहाँ पे जब सर्वर
रिस्पॉन्ड करता है उस टाइम पे वो कुकी का हेडर जो है वो सेट कर देता है विथ द आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज जनरेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट, राइट। नाउ लेट्स से कि भाई वो क्लाइंट ने अमेजोन पे जाके कोई फुटवेयर का पेज देखा, राइट, इट इज रिक्वेस्टिंग अगेन। तो यहाँ पे वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी एट द बैकएंड डेटाबेस। Now the client again requested for the same website, so there will be a cookie which is already attached with that request message. So ये same चीजें यहाँ पे भी होगी, that cookie along with its identification number that is 5678 and this is the request message, right। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ HTTP request, but आप लोग समझ जाना this is the HTTP request message। अभी यहाँ पे बैकएंड में जो डेटा होगा उसमें वो सारी चीजें स्टोर होगी, राइट। जो भी एक्शंस परफॉर्म की जाती है बाय द क्लाइंट दैट ऑल विल बी स्टोर्ड इन द बैकएंड डेटाबेस, क्योंकि हर एक क्लाइंट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, राइट। तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर उसे तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये दिस इज दी 5678 क्लाइंट। उसका अगर नेम वगैरह कुछ नहीं डाला होता है तो ऑब्वियसली द क्लाइंट विल बी आइडेंटिफाइड बाय यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर ओनली। जब क्लाइंट अपना नेम और ईमेल आईडी जब वो चीजें डालता है तब वो रिकॉर्ड में आती है। बट लेट्स से कि भाई वो वेबसाइट को हम ऐसे भी देख सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन डाले बगैर, राइट। So at that time we can say that all activity will be recorded at the backend database। जो भी activity client करता है that will be recorded over here, right, and that will be a cookie specific action, right। वो एक cookie specific action होगी जो सारी चीजें वहां पे record होगी। So in the same way there will be a response from the server side। जो request किया था उसका response तो देना होगा, right। So again there is a response from the server side। Now let's say that after 1 week जो ये क्लाइंट है, राइट, दिस इज द क्लाइंट, वो फिर से वही वेबसाइट को विजिट करता है। तो क्या उस टाइम पे अलग यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा या सेम होगा? दैट विल बी सेम ओनली, राइट। डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी देयर व्हेन द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ बट आप लोग समझ जाना कि भाई वो स्पेसिफिक वेबसाइट को 1 वीक के बाद विजिट कर रहा है। तो अगेन देयर विल बी द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर which is generated for the first time, right। so यहाँ पे सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा आफ्टर 1 week and there will be a response from the server। So again the header will be like set cookie 5678 request message and this is the response message। अब कई बार क्या होता है कि भाई जो कुकी ये सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है तब ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। लेट्स से कि भाई मैंने अमेजोन पे एक बार अपना नेम आईडी वगैरह स्टोर कर लिया और अकाउंट बना लिया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, राइट। अभी लेट्स से कि भाई मुझे अभी जून जुलाई में सेल चलता है, मैंने मार्च में देखा था, अभी मैं जून जुलाई में वही वेबसाइट को फिर से विजिट कर रही हूँ और मैं सारी चीजें वी कैन से कि वो सारी चीजें स्टोर ही है वहां पे, राइट। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू बाय एनीथिंग, मैंने सारी अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल दी है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स जो भी डालनी होती है वो मैंने डाल दी है। So every time I don't need that details to put in that, right। वो सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी स्टोर ही होगी, राइट। मैं जब चाहे वो चीजें एक्सेस करके बाय कर सकती हूँ, राइट। सो दैट इज द रोल ऑफ दैट कुकी। अब मान लो कि भाई मैंने फुटवेयर के पेज को बहुत सारी बार देखा है, लेट्स से कि मैंने और बहुत सारी चीजों को देखा है, सैंडल्स देखे हैं उसमें या फिर शूज देखे हैं, राइट। तो कई बार वो मुझे सजेशन भी देगा, राइट, कि लेट्स से कि भाई ये स्पेसिफिक क्लाइंट है, वो उस पेज में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक रहे थे, राइट। तो वहां पे वो सारी एक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती है, right। So at that time if I'm visiting the website after 1 week या 1 month, at that time the suggestions will be given to me कि भाई ये शूज आपने मार्च में देखे थे, अभी उसमें सेल चल रहा है, आप अभी भी एक बार देख लो, right। It's kind of a suggestion that we got from that,
राइट। अगर मैंने कोई और चीजें देखी है, लेट्स से कि मैंने टी शर्ट्स वगैरह देखे हैं तो टी शर्ट्स का सजेशन देगा, मैंने जींस देखे हैं तो मैंने मुझको जींस का सजेशन आएगा, राइट। सो इन दैट वे इट वर्क, राइट। हर एक जो चीजें होती है क्लाइंट की, हर एक एक्शंस जो क्लाइंट परफॉर्म करता है उस पेज पे रहकर वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम इफ वी आर विजिटिंग द सेम वेबसाइट, देन इट शोज दिस सम सजेशन टू अस, राइट। सो दिस इज द वर्क ऑफ द कुकी हियर। Okay, is it clear to all of you? बुक में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है। इफ यू वांट टू रीड इट, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार टॉपिक देख लेना, राइट। मैंने वही एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया है, तो अगर आप बुक रेफर कर रहे हो तो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, राइट। सेशंस के बाद एक बार बुक देख लिया करो तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। Okay. One more thing I want to ask you, to all of you, ki, as I have told you before also that I have enrolled all of you in this Cisco networking course, right? So how many of you have started that course? Just let me know in the chat box. Just acknowledge me once, not twice. What about others? Please respond me fast. Okay. जिसने स्टार्ट किया है वही बोलना यहाँ पे। What about others? See, wanted to tell you something कि यहाँ पे जो एक कोर्स दिया है वो मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। इंटरनल में उसके 20 मार्क्स है, राइट। जब आप उसका सर्टिफिकेट सबमिट करोगे इन द गूगल क्लासरूम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, 20 marks are assigned to this specific task. If you are not submitting, then you will lose this 20 marks, राइट। तो आपको ये कोर्स स्टार्ट करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट दिस कोर्स ऑन टाइम, राइट। मुझे ये मिड टू स्टार्ट होने से पहले ये कोर्स कंप्लीट चाहिए। यू स्टिल हैव 2 months to complete this course, right? 2 months तो नहीं बोल सकते, but 1.5 months to complete this course. So complete it as soon as possible. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, just mail me along with the screenshot that you are facing. Okay, so in today's session, we have started with the web caching. In that, we have seen the conditional gate, right? What is the use of the conditional gate? Why we require to use the conditional gate in the web caching, and what is the advantage of that? After that, we have seen some message format, and after that, we have discussed the cookies, right? So आज का session clear है सबको? Okay, good. Now it's time for attendance. Yet we don't have any official mail. अगर 15 से start होगी तो आप सबको मेल आ जाएगा, राइट। अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल मेल नहीं है, तो वी कांट से एनीथिंग।
Okay, so pay attention for a while here. Okay, 18 series 30, 19 series 1, Yes, ma'am. 2, Present, ma'am. 4, 5, 6, Present, ma'am. 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Present, ma'am. 17, 18, 19, 19 present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, 23, Present, ma'am. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 56 is there, 57, 58 is not there, 59, okay, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, sorry, 001, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509. Check my screen here. Ma'am, 18th series 1. 18 series 18 सीरीज 1 कहाँ पे है? यहाँ पे यही नहीं नहीं है मैम इसमें। क्या? इसमें तो बता ही नहीं व्हाट्स योर रहा। नेम? अक्षय अकबरी। हाँ,
तो आपका क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? I don't know, मैम। आपकी ये पहली क्लास है? नहीं नहीं मैम। तो इतने टाइम तक था आपका नंबर? किसी में भी नहीं बता रहा मैम। कितने टाइम से नहीं दिखा रहा है? स्टार्टिंग से ही। तो आपने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? आई हैव अनाउंस्ड सेवरल टाइम्स इन द लेक्चर्स डियर कि अगर किसी का नेम नहीं है मुझे मैसेज करो, स्टूडेंट सेक्शन को बोलो, उसको मेल करो। आई हैव अनाउंस्ड सेवरल टाइम्स इन द लेक्चर्स। और अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया। आप D2D स्टूडेंट हो? नो। आर यू श्योर कि आप इसी क्लास में हो? लेट मी चेक द क्लास लिस्ट। अभी तक आप मुझे कभी आप दिखाई नहीं दिए क्लास में। कोई खबर नहीं होता। What's your enrollment number, dear? Just write in the chat box. Akshay, write your enrollment number in the chat box. ओके मैम। Okay, rest of the people may leave the session.